Supreme Court judgment on entitlements for the disabled people. Delhi High Court judgment of 2012. In 2012, university had allowed a 10% concession in the minimum eligibility requirement for SC/ST candidates and a 5% concession for the disabled applicants. Okay. Concession for the fees. Okay. Fees applicants. This is what this was challenged in Delhi High Court. This was challenged in Delhi High Court in its 2012 judgment in the Anmol Bhandari minor through his father, natural guardian versus Delhi Technological University (DTU). The High Court ruled against the differential treatment, terming it discriminatory, terming it discriminatory, discriminatory. Okay. The major principle behind the judgment the was that without imparting proper education to those who suffering from disabilities, there cannot be any meaningful enforcement for their rights as mentioned under the Constitution and prevailing legislations on on providing equal opportunities to disabled and protecting their rights Okay. The Supreme Court has upheld 2012 judgment of Delhi High Court, holding that the person with disabilities are socially backward and hence are entitled for the same benefits of relaxations as the scheduled caste and scheduled tribe. Okay. The Supreme Court has upheld the 2012 judgment of Delhi High Court, holding that the persons with disabilities, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें भी SC/ST की तरह ही क्या कहते हैं जो बेसिकली बेसिकली क्या कर रखा था, जो डिसेबल्ड लोग थे उन्हें एक अलग सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, मतलब अगर वो SC/ST हैं या जनरल हैं या कुछ भी हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में डिफाइन कर रखा था उन्हें, मतलब दे आर डिसेबल्ड, सो डिसेबल्ड के लिए फॉर एग्जांपल 10% सीट रिजर्व कर रखे हैं डिसेबल्ड के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, डिसेबल में सब आ गए, मतलब जनरल, ओबीसी, SC/ST। तो SC/ST 10% जो सीट है तो उनमें क्या हुआ कि जनरल और SC/ST वर ट्रीटेड इक्वली इफ दे आर डिसेबल्ड, ठीक है, वर ट्रीटेड इक्वली इफ दे आर डिसेबल्ड। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आई किसके कौन से केस में, अनमोल भंडारी माइनर थ्रू हिज फादर नेचुरल गार्डियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो केस कहाँ पे गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि क्या कहते हैं, अगर आप सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उनमें भी तो कैटेगरीज हैं, मतलब उनमें भी तो SC/ST है और जनरल है, ओबीसी है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी कि क्या कहते हैं उनमें भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें भी वुमेन्स है, फिजिकली हैंडीकैप्ड में वुमेन्स भी आती हैं। तो एक एक पूरा सेक्शन बनाने से आपका ये नहीं हो जाएगा कि एक पूरा पर्टिकुलर सेक्शन बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें SC/ST के भी राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, उन्हें SC/ST के भी राइट्स मिलने चाहिए। जो SC/ST को क्या कहते हैं कोटा मिलता है, वो कोटा इन्हें भी मिलना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को भी मिलना चाहिए। Similar to how SC/ST candidates get relaxations of a certain percentage of marks to qualify for admission or employment, the same relaxation shall apply the same relaxation shall apply to disabled candidates too, ठीक है, disabled candidates के लिए भी same relaxation लगना चाहिए। okay। The rights of persons with disabilities, तो हम इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन व्यू पॉइंट देख लेते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, the rights of person with disabilities act 2016 aims to empower disabled people. This act replaces the persons with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act 1995. The rights of persons with disabilities act 2016, the obligation to the United Nations
on the rights of persons with disabilities, UNCRPD, ठीक है, to which India is a signatory. तो इंडिया ने जिस पे signatory है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD, इस पे इंडिया सिग्नेटरी है, तो इसलिए हमें इसकी ऑब्लिगेशंस जो है वो सब अगर कोई भी राइट्स की बात होती है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। So, to which India is a signatory. Salient provisions. The Act defines disability based on an evolving and dynamic concept. The types of disabilities covered under the Act have been increased from existing 7 to 21, and the central government will have the power to add more types of disabilities. The Act envisages certain affirmative measures to ensure that persons with disabilities enjoy the rights equally with others. Benefits such as reservation in higher education not less than 5%, reservation in higher education not less than 5%, government jobs not less than 4%, reservation in allocation of land poverty elevation schemes, 5% allotment, etc., have been provided for the persons with benchmark disabilities. Every child with a benchmark disability between the age group 6 to 18 years shall have the rights to free education. मतलब 6 to 18 तक तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उन्हें फ्री एजुकेशन के राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए, इवन दो इट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है। गवर्नमेंट फंडेड का मतलब क्या होता है? पीपीपी मॉडल पे बनने वाले जिन्हें गवर्नमेंट की एड जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एड कैसे कैसे स्कूलों को जाती है? फॉर एग्जांपल पुलिस मॉडर्न स्कूल जो होते हैं, जो पुलिस के स्कूल होते हैं, उनमें गवर्नमेंट की एड जाती है, तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए उसमें उनके पास राइट्स हैं कि वो फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल MIT कॉलेज, मेरिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। अगर इसमें कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड जाके ये अपने राइट्स की डिमांड करता है कि आई हैव द राइट टू स्टडी फ्री ओवर हियर, तो उसे वहां पे वो सीट देनी पड़ेगी, ठीक है। Institutions will have to provide inclusive educations to children with disabilities. Okay. National and state fund will be created to provide financial support to persons with disabilities. National fund बनाना पड़ेगा और financial support भी करना पड़ेगा. The act provides The Act provides for penalties for offences committed against persons with disabilities and also violations of the provisions of the new law. Special courts would be designated in each district to handle cases. Okay. To handle cases. What is the significance? इसका significance basically हमें पढ़ना है कि इसका यूज क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, यूज क्या है, ठीक है। Through this judgment, Supreme Court has recognized the difficulties faced by the disabled in accessing education or employment regardless of their social status. मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, द गर्ल वाज ब्लाइंड, ठीक है। द गर्ल वाज ब्लाइंड and she was not given the job in railways because the railway said you are blind, you cannot do this work. So later it was मतलब उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, I can do this work easily, but she was not given that job and she was disqualified from the interview, ठीक है। She was disqualified from the interview on that basis only. Okay, and later what she did, she qualified the Indian Administrative Services, IAS. Okay, so now she will administer that department. Before that she मतलब उससे पहले क्या था कि वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट में काम करती, अब वो ही लड़की उस पूरे डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करेगी. So these are the inspiring stories of physically handicapped pupils.
तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी. Physically handicapped people face a lot of problems in traveling and many things. In many things they faces the problems. If they are studying, that's more than sufficient. Because it is very depressing. अगर हमारे शरीर में कोई चोट भी लग जाती है ना, तो हम काफी दिन की छुट्टी रख लेते हैं. Just try to imagine if someone is not having the hand and someone is not having the leg, what a level of difficulty he or she has to face in the society. What is the severing pains? Through this judgment, the Supreme Court has recognized the difficulties. Okay. So there is an issue of low literacy and employment rates among persons with disabilities. तो लो लिटरेसी रेट काफी कम है, और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी कम है among disabled peoples. As per 2001 census, in educational indicators, illiteracy among the disabled was much higher than general population figure. The share of disabled children out of school was quite higher than other major social categories. The 2001 census put the illiteracy rate among the disabled at 51%. मतलब आप देख रहे हो कि illiteracy कितनी ज्यादा हो रही है disabled peoples में. Because क्या होता है कि जिन पेरेंट्स के यहाँ disabled people पैदा हो जाते हैं, वो कई बार क्या होता है कि उन्हें कहीं पे डोनेट कर आते हैं, या कहीं पे मतलब आप सभी ने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि उन्हें फेंक आते हैं, पन्नी में बंद करके फेंक के आ जाते हैं. तो डिसेबल पीपल को काफी ज्यादा सोसाइटल प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं. और क्या कहते हैं जितने भी एनजीओ चल रहे हैं उन सब में आप देखते होंगे कि ज्यादातर डिसेबल चिल्ड्रन की मतलब उन्हें फादर पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव डिप्राइव्ड देम, उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया है, ठीक है. According to a study, only 34 lakh of the 1.34 crore people with disabilities, 34 lakh of 1.34 crore, 1 crore people are illiterate. Employable age have a job in India. Okay. The judgment could help alleviate some of the difficulties faced by these sections through this affirmative action. According to National Statistical Office (NSO) survey, the overall percentage of the persons with disabilities in the population is around 2.2%. The significant segment of the population should not be left out of social and economic advancement. What are concerns? Okay, concerns क्या क्या हैं? A counterpoint to the idea of eliminating the distinction between the disabled and the scheduled castes and scheduled tribes. तो मैं आप सभी को कल इसी से रिलेटेड आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत, या फिर किसी और से समझवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है. तो पॉलिटिकल सेक्शन किसी और से समझाने की कोशिश करूंगा. और आपको बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए. पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा सेक्शन है. ओके, आपको पूरा इशू पता चल गया, और इसी इशू से रिलेटेड आपको फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन क्या कहते हैं जो आपका पेपर रहेगा उसमें फंडामेंटल राइट का ही सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग इशू. Okay, what are concerns? A counterpoint to the idea of eliminating the distinction between the disabled and the scheduled castes and scheduled tribe, that is, that this could end up equating physical and mental disability with the social disability and the experience of untouchability suffered by marginalized sections of for centuries. Marginalized sections of the for centuries. ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न रेज करे थे, और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा था कि इन्हें अपलिफ्ट करना है अप टू 10 years, ठीक है. बट दिस हैज बिकम नाउ पॉलिटिकल इशू बिकॉज ऑफ विच जो SC ST का जो इक्वालिटी बात ये पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, वो इक्वालिटी कभी आने नहीं देना चाहते, बिकॉज
it has become a vote bank for them. ठीक है, वोट बैंक जब बन जाता है तो वो किसी भी सेक्शन को उठने नहीं देते. ठीक है, disability with social disability and experience of untouchability suffered by marginalized sections for centuries. This would allow disabled persons from traditionally privileged community an advantage over those suffering from a historical social disability. हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो टीना डाबी जो आईएएस एस्पिरेंट है, आईएएस टॉप करा था उन्होंने, तो उनका एक एग्जांपल बहुत अच्छे से मानता हूँ. उनके दोनों फादर और मदर जो थे वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट पे एम्प्लॉयड थे. मतलब देवर इधर आई थिंक आईपीएस ऑफिसर. हिज फादर वाज आईपीएस एंड हिज मदर वाज पीसीएस आई थिंक. ठीक है, मतलब they were officers, they were at officers rank in police department. ओके, बट क्या हुआ कि उस जब हम उनका देखते हैं कि उन्होंने प्री क्वालिफाई जो करा वो एससी एसटी का कोटा लेके करा. द रिचर सेक्शन ऑफ द एससी एसटी के लिए जनरल वाला कोई दुश्मन नहीं है, ओबीसी वाला कोई दुश्मन नहीं है. असली दुश्मन एससी एसटी वालों के लिए कौन होता है? उन्हीं के सेक्शन में जो हायर पोस्ट पे पहुंच चुके हैं और जिनके पास स्टेटस काफी अच्छा है, जिनके पास मनी काफी अच्छी है, वो अपना रिजर्वेशन नहीं छोड़ते हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एससी एसटी इन इंडिया इज कि जो आप एससी एसटी में देखते हैं, मतलब जो हरिजन सोसाइटी होती है उसमें अगर आप देखते हैं तो उनकी ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है, मतलब एससी एसटी में एससी एसटी के जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उनके पास मनी है, वेल्थ है, सब कुछ है, बट स्टिल पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस में जिनके फादर अच्छी पोस्ट में और अलग अलग पोस्ट में और जिनके फादर्स के अच्छे अच्छे बिजनेस है, मतलब द रिचर सेक्शन ऑफ द एससी एसटी आर डिप्राइविंग द लोअर सेक्शन, मतलब द पुअर सेक्शन ऑफ द एससी एसटी. ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम काफी अच्छा बना हुआ है, कोटा सिस्टम इंडिया का काफी अच्छा है, बट क्या है कि कोटा सिस्टम में जो क्रीमी लेयर है ना एससी एसटी की, वो हमें किसी भी तरीके से हटानी होगी. ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कंसेप्ट एससी एसटी में भी आना चाहिए, बट क्या होता है कि एससी एसटी में अभी तक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया नहीं है. क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा वेल्थ हो, जिनकी सोसाइटी में इज्जत बहुत ज्यादा हो, वो भी अगर अपना रिजर्वेशन ना छोड़े तो वो उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रीमी लेयर. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्रीमी लेयर. उस क्रीमी लेयर को हमें दूध की परत, ठीक है, दूध की परत क्या होती है? सॉलिड होती है, मतलब उनके पास सब कुछ होता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, फैट, सब कुछ होता है. ठीक है, तो वो अगर दूध से सेपरेट नहीं होगा तो जो दूध का एरिया, मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ मिल्क, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं मिला है, जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिनके अंदर फूड सिक्योरिटी की कमी है, जिनके पास एजुकेशन, दोज हु आर एजुकेशनली डिप्राइव्ड, तो एससी एसटी की जो क्रीमी लेयर है ना, वो उनके पास कुछ नहीं जाने दे रही. ठीक है, वो उनके पास कुछ नहीं जाने दे रही. तो ये चीज हमें समझनी होगी कि जो आपकी एससी एसटी के असली दुश्मन उनके ही कम्युनिटी के जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, वो ही उनके असली दुश्मन है. जनरल और क्या कहते हैं ओबीसी आपका कुछ भी नहीं लेके खाएंगे. ठीक है, हमारा सिस्टम काफी अच्छा बना हुआ है, जनरल और ओबीसी क्या कहते हैं एससी एसटी का कुछ नहीं लेंगे. ये इस बात की गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि जनरल और ओबीसी एससी एसटी का कुछ नहीं लेते हैं. ओके, सो डब्ल्यूएचओ की ये तीन एडवाइसेस आई हैं. अवॉइड 3 Cs. ठीक है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर कोविड-19 स्प्रेड्स मोर इजीली. ओके, तो 3 Cs के बारे में हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ की 3 Cs क्या है. क्राउडेड प्लेसेस, क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, मतलब क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, मतलब जो आप पार्टी वगैरह करते हो या कुछ और करते हो, तो ये सब चीजें. क्लोज कॉन्टेक्ट प्लेसेस स्पेशली वेयर पीपल हैव क्लोज रेंज कन्वर्सेशंस. ठीक है, क्लोज रेंज कन्वर्सेशन जहां बातचीत अच्छे तरीके से हो सकती हो, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए अभी. और कन्फाइंड एंड इनक्लोज प्लेसेस, बिल्कुल बंद जगह, फॉर एग्जांपल क्लब्स एंड अदर थिंग्स, तो इन सब चीज को जगह को भी अवॉइड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी एक यूएसए में एक योगा सेंटर खोला गया है, उसमें अलग अलग बॉल में
सबको योगा करने के लिए एक स्पेस दिया गया है, मतलब एक पर्टिकुलर और ओपन फील्ड में करवाया गया, ठीक है, ओपन फील्ड में। और हर किसी को अपनी अपनी एक बलून वाली बॉल होती है ना, बड़ी बलून बॉल होती है, जिसमें हम अंदर 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 चले जाते हैं। आपने सबने देखी होगी एंटरटेनिंग वीडियोस में। उस बॉल के अंदर हम सब एंटर कर जाते हैं। तो उसमें योगा करने की इजाजत दी गई थी। और एक तरीके से हम अपने आप को सेल्फ कन्फाइंड कर रहे हैं और प्लस योगा भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमने हमें आगे चल के हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लब पार्टीज वगैरह को अवॉइड करना होगा और क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, मतलब आप आपस में बातचीत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ग्रुप में बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर बातचीत करनी है तो किसी ओपन ओपन प्लेस पे जाइए और वहां पे जाके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। So, अब हम इंडियन ज्योग्राफी कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में मेरे को बताइए कि हम कहाँ पे पहुंच गए थे। Someone message me please. Passes. We have done the passes, I think. ठीक है, we have done the passes. Okay. तो ये कुछ पासेस हैं एक्स्ट्रा, इन्हें देख लीजिए एक बार। हल्दी घाटी पासेस, गोराघाट पासेस, खांडवा गैप, थालीघाट गैप, भोराघाट गैप और पालघाट और सिंचन गैप, ठीक है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इनका इनसे रिलेटेड कोई इशू चल नहीं रहा है। तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ इसे स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर क्या कहते हैं, इसे मैप में ड्रॉ करके एक बार मैप में ड्रॉ करके आप सभी इसे बना लीजिए, ठीक है। मैप में इसमें क्या करना होगा हमें, अगर आप सभी को इसका बेसिकली मैप बनाना होगा तो इसमें नीचे का एरिया बनाना, ठीक है, नीचे का एरिया बनाना। हमेशा याद रख, मैंने क्या बताया था कि गुजरात बनाइए एंड द मैप ऑफ इंडिया विल बी मेड। ओके, इफ यू मेक द गुजरात तो यहाँ पे थालघाट दिखा दीजिए, यहाँ पे कुछ और दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को समझना चाहिए कि वट एवर द डिमांड, जस्ट मेक द मैप पर्टिकुलर टू दैट सेक्शन, ठीक है। हल्दी घाटी गैप, घोरा घाट गैप, खांडवा गैप, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में बैटल हुआ था। ओके, याद है आपको सभी को, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेस राणा प्रताप, ठीक है। घोराघाट गैप, खांडवा गैप, थालघाट गैप, भोराघाट गैप, घाट, घाट, ठीक है। हल्दी घाटी, गोराघाट, खांडवा गैप, थालघाट, भोराघाट, पालघाट, सदन, इसका नाम क्या है, शेनकोटा गैप, शेनकोटा गैप, शेनकोटा गैप और सील पास। ये ये दो और देख लेना, सील पास, सील पास और पांगसाउ पास, सील पास और पांगसाउ पास, सील पास और पांगसाउ पास। ओके, सो हम आज करते हैं सॉइल्स, बेसिकली सॉइल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल से पहले मैप देख लीजिए आप एक बार। ये इस रीजन में हम क्या कहते हैं, डेजर्ट सॉइल, ठीक है। इस रीजन को क्या कहते हैं हम, सॉल्टी सॉइल, ठीक है, सॉल्टी सॉइल। ये गुजरात के इस रीजन में क्या हम हमें क्या मिलती है, सॉल्टी सॉइल, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट वाली सॉइल। और ये क्या रहती है, तराई सॉइल। और ये प्लेट्यू रीजन और ये एलिवियल रीजन, ठीक है, एलिवियल सॉइल रीजन। ओके, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के लिए आप देख लीजिए एक बार। दिस इज ब्लैक सॉइल, ओके। रेड सॉइल, लंबी लंबी लाइंस, और लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ओके, लेटराइट सॉइल है। और डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल इज here, okay. टेमी सॉइल, टेमी सॉइल, oh sorry, तराई सॉइल, तराई सॉइल, तराई सॉइल is just here, तराई सॉइल। and gray and brown soil, gray and brown soil is here, gray and brown soil, okay. So अब हम
करते हैं. Soil, 9 soils we will do. Black soil found in the Deccan Plateau. Found in the Deccan Plateau. इंडियन ज्योग्राफी में बस रिवर्स का टॉपिक बचा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके सिवाय ज्यादा टॉपिक अब आपके बचे नहीं है. तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो हिस्ट्री में और फिर उसके बाद पॉलिटी, एंड देन योर स्टैटिक पोर्शन विल बी फिनिश्ड. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स हम किसके बेसिस पे करते हैं, करंट अफेयर्स के बेसिस पे इकोनॉमिक्स करते हैं, और पॉलिटी भी ज्यादातर हम करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही करते हैं. ठीक है, पॉलिटी भी ज्यादातर हम करंट अफेयर्स के बेसिस पे करते हैं. और स्टैटिक पोर्शन में और क्या चीज बची है आपकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी. ठीक है, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी ही देखता हूँ मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ही आऊंगा मैं. नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाते हैं. ठीक है, हिस्ट्री say if you want history then say history, or if you want world geography then say world geography. ठीक है, what do you want, मतलब आप बता दीजिए मेरे को एक बार, हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी. मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी करें. गौरव और शुभम तुम भी बता दो. वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री, whatever is your wish. Say soon. गौरव. हिस्ट्री. सो चलो हिस्ट्री देखते हैं. ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफी काफी लंबा टाइम हो गया होगा और आप बोर भी हो गए हो. ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं. Next is black soil, found in Deccan Plateau, Kathiawar Peninsula, Malwa Plateau, and in Rajmahal Hills. Found due to basaltic lava of the Deccan Trap, also called as the black cotton soil or the Ragar soil. Black cotton soil or the Ragar soil. Okay, rich in titaniferous oxide. Titaniferous oxide. हाई क्ले कंटेंट एंड मॉइस्चर रिटेंटिव. मॉइस्चर रिटेंटिव होती है. ब्लैक सॉइल बेसिकली हम देखते हैं तो इसमें कॉटन कल्टीवेशन होती है, बिकॉज ये क्या होता है कि जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी आता है तो ये बिल्कुल चिपक जाती है आपस में, मतलब इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, और क्या होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी, जो ब्लैक सॉइल का एरिया होता है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. तो हमेशा कैसी सॉइल चाहिए जिसमें पानी एकदम से ट्रैप हो जाए. और ब्लैक सॉइल के एरिया में पानी, ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी काफी अच्छी है कि अगर वहां पे थोड़ा भी पानी अवेलेबल होगा तो ब्लैक सॉइल में कल्टीवेशन हो जाती है. ठीक है, डेक्कन ट्रैप ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल और रेगर. रिच इन टाइटेनिफेरस ऑक्साइड, हाई क्ले कंटेंट एंड मॉइस्चर रिटेंटिव. क्ले का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सॉइल के बीच में स्पेस का कम होना, स्पेस का कम होना. ड्यूरिंग द वेट सीजन डिफिकल्ट टू प्लो, मतलब ये बेसिकली प्लो करने में जो हल होता है ना, उसे अगर आप किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो उस चीज में अगर किसी भी चीज को घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो फैलने में मुश्किल तो क्रिएट करती है. तो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्लो. लेटराइट सॉइल, वेस्टर्न घाट्स, मेघालय प्लेट्यू. फाउंड बिकॉज ऑफ लीचिंग. फाउंड बिकॉज ऑफ लीचिंग. डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, ये बेसिकली लेटराइट सॉइल जो होती है ये पत्थर नुमा, मतलब पत्थर, ये एक तरीके से पत्थर नुमा सॉइल होती है. ठीक है, तो इसका काम बेसिकली खेती के लिए तो होता ही नहीं है. मतलब ये क्या होता है कि पहाड़ों के पत्थर आ गए और लीचिंग हो गई, मतलब एक तरीके से लीचिंग लीचिंग हो गई पहाड़ों में से, और पहाड़ों के पत्थर आने शुरू हो गए, पहाड़ों के पत्थर से सॉइल बनी. तो उसमें क्या होता है कि उसमें फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती. तो इस तरीके से इसका काम ज्यादातर किस चीज में किया जाता है, एक्सीलेंट फॉर ब्रिक मेकिंग, बिकॉज इट इज सॉलिड. ठीक है, बिकॉज इट इज सॉलिड, so that's why it is excellent for brick making.
डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि क्या कहते हैं खेती करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, एनपीके, तो इसमें ही ये डेफिशिएंट होता है। नॉट सो फर्टाइल, एक्सीलेंट फॉर ब्रिक मेकिंग, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल, फाउंड इन गुजरात, एंड राजस्थान, टू द नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ खंबाट, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबाट, along the Aravallis, Gulf of Khambat and along the Aravallis, ठीक है, deficient in NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, not very fertile, coarse texture, मतलब लहरनुमा टेक्सचर रहता है इसका, ठीक है, ग्रे एंड ब्लैक सॉइल का। ओके, गल्फ ऑफ खंबाट बेसिकली कहाँ पे रहता है, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो गल्फ ऑफ खंबाट कहाँ पे रहता है, इस रीजन में क्या कहते हैं हम, गल्फ ऑफ खंबाट, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबाट, तो इसी एरिया के आसपास के रीजन में ये सॉइल मिलती है, ठीक है। So next is deficient in NPK, not very desert soil. Okay, desert soil found in Rajasthan, west of Aravallis, found in Rajasthan, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, west of Aravallis, coarse texture, fertile when irrigated, fertile when irrigated, formed, देखो जब भी क्या कहते हैं किसी के भी पार्टिकल्स फाइन होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो जब भी उसे इरिगेट करा जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे आईजीआई कैनाल बनाया गया, इंदिरा गांधी कैनाल जो बनाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस सॉइल में मॉइस्चर आना शुरू हो गया, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पहले से थे, बस उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर और ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेजर्ट सॉइल कैन इवन प्रोड्यूस मोर देन दिस होल बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रीजन, मतलब अगर हम गंगा का डाइवर्जन डेजर्ट रीजन में कर देंगे तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा इंडिया में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्रॉप्स की एक पर्टिकुलर रेट होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जितने का किसान उगाने में खर्चा करेगा, अगर उसे उतना उतना अमाउंट नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि क्रॉप के रेट डिक्रीज हो गए, तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वो उस खेती को करना ही छोड़ देगा, ठीक है। दैट्स व्हाई डेजर्ट रीजन की तरफ हम गंगा का डाइवर्जन कभी नहीं करना चाहते, ठीक है, बस थोड़े बहुत कैनाल बनाना चाहते हैं, और डेजर्ट रीजन को बेसिकली टूरिज्म के लिए ही रखना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। बिकॉज अगर क्या कहते हैं डेजर्ट रीजन में गई रिवर और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो गया, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और हाई प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता किसी देश के लिए, ठीक है। ये बातों को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करना कि हाई प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता कई बार देश के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड प्रोडक्शन के साथ साथ पब्लिक की डिमांड भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, susceptible to wind erosion and calcification, okay, calcification. Red soils found in Peninsular Plateau, outside the Deccan Plateau, coarse in texture, ठीक है, not very fertile, ये भी fertile नहीं होती रेड सॉइल, suitable for cultivation of coarse grains, ठीक है, coarse grains की cultivation के लिए अच्छी रहती है, coarse grains मतलब ज्वार बाजरा इन सब चीज के लिए ठीक रहती है। रेड एंड येलो सॉइल्स, छत्तीसगढ़ झारखंड, develops when rainfall is higher than 100 centimeter. There is dominance of iron, leads to yellow color, ठीक है, dominance of iron leads to yellow color, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, dominance of iron leads to yellow color, okay. Not very fertile, suitable for coarse grain cultivation, तो वही ज्वार बाजरा लिट्टी चोखा जो बनाया जाता है, ठीक है, जिससे लिट्टी चोखा बनाया जाता है, तो वो इन्हीं रीजन्स में मिलता है, बेसिकली रेड सॉइल रीजन्स एंड येलो सॉइल रीजन। तो रेड सॉइल ही येलो सॉइल में कन्वर्ट होती है एट द टाइम ऑफ रेनफॉल, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का जब रेनफॉल हो जाता है, तो ये रेड सॉइल ही येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है।
Dominance of iron leads to yellow color. Not very fertile, suitable for coarse grain cultivation. Okay, mountain soils. Mountain soils found in the mountainous regions of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh, etc. Thin profile, thin profile. ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनका इरोजन होना बहुत आसान होता है, तो दैट्स व्हाई टेरेस फार्मिंग करी जाती है यहाँ पे. ठीक है, नॉट फर्टाइल, deficient in potash and phosphorus, deficient in potash and phosphorus, deficient in potash and phosphorus. Next is tarai soil. Tarai soil, part of alluvial soil, found along the Himalayas of south of the Shivaliks. Part of the alluvial soils found along the Himalayas south of Shivalik. शिवालिक बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सहारनपुर रीजन से. ठीक है, सहारनपुर रीजन से शिवालिक से स्टार्ट हो जाते हैं. और पार्ट ऑफ एल्यूवियल सॉइल, तराई सॉइल वहीं पे मिलते हैं, क्या कहते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और इन सब रीजन में तराई सॉइल ही मिलती है. ठीक है, develops in waterlogging conditions when streams emerge after the bhavar. ठीक है, streams emerge after the bhavar. Example of depositional soils, one of the most fertile soils of the world. ठीक है, ये most fertile soil in the world समझी जाती है. Rich in nitrogen but deficient in phosphorus and potassium. Phosphorus and potassium. Ideally suited for rice cultivation. तो राइस कल्टीवेशन, अभी राइस कल्टीवेशन का ही टाइम पीरियड है. और कल इसी रीजन से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, इसी तराई रीजन के आसपास के रीजन से ही मैं बिलोंग करता हूँ. और यहाँ पे अभी बारिश होने की वजह से राइस कल्टीवेशन के क्रॉप में काफी अच्छा प्रोडक्शन देखा जाएगा आगे आने वाले टाइम में. ठीक है, आइडियली सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन. ओके, so this is your topic for the day completed. So आप सभी इसे लिख लीजिए एक बार.